Hello everyone, welcome back to my class. This is Shivani, your English teacher. Students, this is the fourth part of tense chapter. Today we will complete our past tense. In the previous video of past tense, we discussed simple past and past progressive, and in today's video we will be completing our past tense. So yes, let's have a quick recap of the previous video and then we will move further. Past tense, anything which happened in the past. We talk about past tense when we talk about anything which happened in past. And okay, yes, this is it. In the previous video we have already discussed what is simple past and past continuous. What is simple past? When we talk about any habitual thing, any action which used to happen daily, which was a habit, which was a hobby, we use simple past. And what is past continuous? जब कोई काम आपका पास्ट में शुरू हुआ, कुछ टाइम तक कंटिन्यू चला और फिर वो ख़त्म हो गया, तब हम यूज़ करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव. And today we will complete our past perfect tense and past perfect continuous. Okay, so what is past perfect tense? The past perfect tense is made from the verb had and the past participle of a verb. हम past perfect tense बनाते हैं subject plus had plus past participle of any verb plus object. Past participle of any verb मतलब verb का third form. जैसे go, went, gone. तो go का V3 क्या है? go का past participle क्या है? gone. ठीक है? Example, I had finished the work. She had gone. So example में देखते हैं I क्या होता है आपका subject. Had हमें यूज़ करना है क्योंकि had हमारा helping verb होता है past perfect के लिए. Finished क्या है? Finished is the third form of finish and the work is your object. Similarly, she had gone. Subject is she, had is your helping verb and gone is your verb third form. The past perfect is used in the same way as the present perfect, but it refers to a time in the past, not present. ठीक है? Past perfect हम similarly वैसे use करते हैं जैसे हम present perfect करते हैं. So make sure that if you are watching this video, make sure that you have already watched the present, first or second part of this video. Otherwise it will be quite difficult for you to understand this. क्योंकि अभी मैंने बोला कि past perfect को similarly वैसे use करते हैं जैसे हम present perfect को use करते हैं. Now see where we use past perfect. We use the past perfect for something that started in the past and continued up to time in the past. Example, when George died, he and Annie had been married for nearly 50 years. पास्ट टेंस में जब कोई हमारा काम शुरू हुआ हो, वो कंटिन्यू हुआ हो अप टू अ गिवन टाइम, ठीक है, तब हम उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट. जैसे व्हेन जॉर्ज डाइड, जब जॉर्ज की डेथ हुई, ही एंड एनी हैड बीन मैरिड फॉर नियरली 50 ईयर्स. जॉर्ज की और एनी की शादी 50 ईयर्स की हो चुकी थी. Second, she didn't want to move. She had lived in Liverpool all her life. See this, she had lived in Liverpool all her life. मतलब वो अपनी ऑलमोस्ट एंटायर लाइफ वहाँ पर रही थी. मतलब काम पास्ट में ही शुरू हुआ था, उसने पास्ट में ही रहना शुरू किया और पास्ट में ही वो काम ख़त्म हो गया था. ठीक है? सो एनीथिंग विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अ गिवन टाइम, there we use past perfect. Next, for something that happened several times before a point in past and continued after that point. ठीक है? He was a wonderful guitarist. He had been playing ever since he was a teenager. He had written 3 books and he was working on another one. So we use past perfect for the things which happened several times, जो कई बार चीज़ें हो चुकी हैं in the past and also they continued for a time. तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? past perfect. Next, when we are reporting our experience up to point in the past.
जब भी हम अपने पास्ट के किसी एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, तब हम क्या यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट। जैसे माई 18th बर्थडे वॉज द वर्स्ट डे आई हैड एवर हैड। जो मेरा 18th बर्थडे था वो अब तक का वर्स्ट बर्थडे था मेरा। ठीक है, पास्ट की बात हुई है, पास्ट का मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मेरा वो जो पास्ट वाला बर्थडे था वो अच्छा नहीं था, वो सबसे बेकार था आज तक का। आई वो ओके where I was, yes, I was pleased to meet George. I hadn't met him before, even though I had met his wife several times. I was pleased to meet George. नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, मैं जॉर्ज से मिलके खुश हुआ। I hadn't met him before, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था। दिस इज़ एन एक्सपीरियंस। इवन दो, जबकि आई हैड मेट हिज वाइफ सेवरल टाइम्स, जबकि मैं उसकी वाइफ से कई बार मिल चुका था। ठीक है, फ़र्क क्या है? अगर हमने यही बात अभी प्रेजेंट परफेक्ट में बोली होती तो हम कहते मैं उससे कई बार मिल चुकी हूँ। आई हैव मेट हिम सेवरल टाइम्स। इसी बात को मैंने पास्ट परफेक्ट में बोला तो मैंने क्या बोल दिया? आई हैड मेट हिम सेवरल टाइम्स। ठीक है, उसने मेरी बुक ली है। शी हैज़ टेकन माई बुक। वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में यही बात बोलो, उसने मेरी बुक ली थी। शी हैड टेकन माई बुक। ठीक है, चाहे यहाँ पर हम शी यूज़ करें, चाहे ही यूज़ करें, चाहे आई यूज़ करें, हैड विल रिमेन सेम। हैव और हैज़ की तरह हैड चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज़ क्वाइट ईजी। नेक्स्ट, व्हेन वी आर रिपोर्टिंग टू आवर एक्सपीरियंस, ओके वी आर ऑलरेडी डन विद दिस। Next step is for something that happened in the past and is important at a later time in the past. I couldn't get into the house. I had lost my keys. So in all these, it is just written in this way to make this chapter quite long. इसका कोई मतलब नहीं है, इतना सारे जो अलग अलग लिखा हुआ है, this is all just to make the chapter lengthy and heavy. हमें सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि जब भी कोई काम पास्ट में हुआ था उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, उसका अभी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका अभी प्रेजेंट से कुछ रिलेशन होता, कुछ कनेक्टिविटी होती तो वो क्या हो जाता आपका प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन क्योंकि वो पास्ट में शुरू हुआ, कुछ टाइम तक चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो हम उसको यूँ कहते हैं पास्ट परफेक्ट। ओके, आई couldn't get into the house, I had lost my keys. मैं घर नहीं जा पाया क्योंकि मैंने कीज़ खो दी थी। Teresa wasn't at home, she had gone shopping. We often use expressions with for and since with the past perfect. जब भी हमारा for, since इस तरह का एक्सप्रेशन आता है पास्ट टेंस में, तब भी हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट। Example, I was sorry when the factory closed. I had worked there for 10 years. I had been watching that program every week since it started, but I missed the last episode. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिंस और फॉर के साथ हमने क्या यूज़ किया है? पास्ट परफेक्ट, विच मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दिस इज रेयरली यूज्ड टेंस. So, how can we make past perfect continuous tense? The past perfect continuous is made from the verb had been and the ing form of verb. मतलब subject plus had been plus verb का ing form plus object. They had been preparing for the examination for 6 months. ठीक है? They had been preparing for the examination for 6 months. ये एग्जाम्पल है। चलो देखते हैं कि कहाँ यूज़ होता है। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज़ यूज्ड इन द सेम वे एज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बट इट रेफर्स टू अ टाइम इन द पास्ट, नॉट द
प्रेजेंट। सेम वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यूज़ करते हैं। सो मेक श्योर दैट यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियो। बस हम उस टाइम के बारे में बात करते हैं जो टाइम पास्ट में हो, ना कि प्रेजेंट में। सो वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस to describe an action in the past which had been going on for some time before another action took place in the past. Pardon me for this spelling mistake, it's action. Okay, to describe an action in the past which had been going on for some time before another action took place in the past. So we use past perfect continuous tense in the place in the action where the action happened in the past, okay, and the action had been going for some time, you know, before another action started happening or another action took place. मतलब जब भी हमारा पास्ट में कोई दो एक्शन होंगे, ठीक है, पास्ट में हमारा कोई एक्शन शुरू हुआ, वो एक्शन चलते रहा, ठीक, कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहा, और उसके बाद वहाँ से कोई दूसरा एक्शन शुरू हो गया, ऐसी जगहों पे हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें याद करने वाली एक चीज़ है, वो क्या है कि जब भी हमारा पास्ट टेंस में कोई दो एक्शन हुए होते हैं तो उसमें से जो हमारा पहला एक्शन होता है, जो हमारा द एक्शन विच टुक इन द फर्स्ट प्लेस, ओके, द एक्शन विच टुक इन द फर्स्ट प्लेस, जो एक्शन हमारा पहले हुआ होता है वो एक्शन होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और जो दूसरा एक्शन होता है हमारा वो होता है सिंपल पास्ट। लेट्स हैव अ एग्जाम्पल एंड देन यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। सी एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर व्हेन द बेल रैंग। बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे जब बेल बजी। दो एक्शन हो रहा है, पहला बच्चे खेल रहे थे, दूसरा बेल बजी। कौन सा एक्शन पहले से हो रहा था? पहले से बच्चे खेल रहे थे क्योंकि बच्चे तो 1 आवर तक खेलते रहे, उसके बाद बेल बजी, ठीक है। सो सी हियर द डेफिनेशन इज कम्प्लीटली जस्टिफाइंग, ठीक है। In the past there should be 2 actions. The first action will be past perfect continuous, yes, and the second one is simple past. Example number 2, she had been studying for 2 hours when I reached her home. जब मैं उसके घर पहुंचा वो ऑलरेडी 2 घंटे से पढ़ रही थी, या कह सकते हो वो 2 घंटे से पढ़ रही थी जब मैं उसके घर पहुंचा। 2 एक्शन हो रहे हैं, दोनों पास्ट में हैं। जो पहला वाला एक्शन है वो एक टाइम पीरियड से शुरू हुआ था और एक टाइम पीरियड तक चला, और वहाँ से दूसरा एक्शन शुरू हो गया। तो जो एक्शन पहले हुआ वो कौन सा था? वो पहले से पढ़ रही थी, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा एक्शन कौन सा हुआ? मैं उसके घर पहुँचा, आई रीच्ड होम। पहला तो ये हो गया। दूसरा हम कहाँ यूज़ करते हैं? वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। जो काम पास्ट में होते रहता था या होता था, जैसे द कंपनी हैड बीन सेलिंग दिस प्रोडक्ट फॉर सो मेनी ईयर्स, ठीक है, ही हैड बीन कमिंग हियर क्वाइट ऑफन। जो कंपनी थी वो इस प्रोडक्ट को बहुत साल से सेल कर रही थी। पास्ट में ये काम रिपीटेडली हो रहा था, बार बार हो रहा था। ही हैड बीन कमिंग हियर क्वाइट ऑफन, वो यहाँ पे आते रहता था, करते रहता था, जाते रहता था, बोलते रहता था, ठीक है, ये काम होते रहता था। ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विद एडवर्ब्स लाइक सिंस, फॉर एट्सेट्रा। जब पास्ट में हम सिंस, फॉर यूज़ करते हैं कि तब उसके साथ हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल, ही हैड बीन वर्किंग हियर सिंस 1982। वो यहाँ 1982 से काम कर रहा था। ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। वो यहाँ 3 साल से रह रहा था, अब नहीं रहता है, ठीक है, अब नहीं रहता है। अगर यहीं पर हम कहते कि वो यहाँ 3 साल से रह रहा है तो हम क्या लिख सकते थे? दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। बट क्योंकि यह पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस में वो यहाँ 3 साल से रह रहे थे, तो हमने लिख दिया दे हैड बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। Okay, so let's discuss it once again. Past tense, we all know what is past tense. When we talk about anything that happened in the past. Past tense में भी हमें पढ़ना है past perfect tense. We use past perfect tense in the same way as we use present perfect tense. बस हमारा जो एक्शन है वो पास्ट में होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। We use past perfect tense for the actions which started in past, okay, it continued for some time and then it stopped. ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं past perfect tense. Where we use past perfect continuous tense? When
any action happened started in the past, it continued up to a time and at that time another action started. ठीक है, जब भी पास्ट में दो एक्शन शुरू होते हैं तब हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. जो एक्शन हमारा पहले से स्टार्ट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. जो एक्शन हमारा बाद में शुरू होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट. हाउ वी मेक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस? By just simply writing subject plus had been plus verb ing form plus object. Okay, so students, this was it about this chapter. If you have anything regarding this chapter, if you have anything regarding this video, you can ask me in the comment section. I will also provide you the PDF of all the exercises, but it will be good for you if you try it on your own, and because it's not nice for you to just copy down everything. And I will also provide other videos of tenses in the description box. Okay, you can watch that video if you haven't watched yet, and we will meet up again in the next video. In the next video hopefully we will complete future tense, and then we will start another chapter. Till then, take care, stay safe.